Good morning students, welcome to all in science class. This is your 12th chapter of friction part 2 for class 8th. Yesterday we discussed about friction and type of friction. Today we will discuss about friction, unnecessary evil, advantages of friction, disadvantages of friction, reducing friction, increasing friction and fluid friction. First we discuss the friction, unnecessary evil. You might have observed that sometime your teacher find it difficult to write on a blackboard. आपने देखा है कि हमें कई बारी ब्लैकबोर्ड पे लिखने में परेशानी होती है. क्यों होती है? This is because the roughness of the board is not sufficient to write. Similarly, you could not write with a pen or pencil if there was friction. यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? हमें लिखने में जो है वो फ्रिक्शन हेल्प करता है. यदि फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? हम लिख नहीं पाएंगे. यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसने एक बार ही मूव करना स्टार्ट कर दिया तो वो कंटिन्यू मूव ही करता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा. लेट अस रीड सम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. Let us study some advantages of friction. Some examples are: number 1, we are not able to walk on a ground because friction between a soil and in ground prevent us from slipping over the ground. यदि फ्लोर पर जो है वो ऑयल गिरा है या पानी गिरा है तब फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा और हम जो है वो आसानी से फिसल जाएंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, हम फ्रिक्शन के बिना लिख भी नहीं सकते हैं. थर्ड इज, कार एंड बसेस हैव अ safely on the road, move safely on the road due to friction between their tires and road. Brake of a vehicle also work due to the friction. Without friction, no building could be constructed. फ्रिक्शन के बिना हम एक कील भी दीवार पर नहीं लगा सकते हैं. विदाउट फ्रिक्शन हम माचिस की तीली भी नहीं जला सकते हैं. फ्रिक्शन इज नेसेसरी. फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है. इट हैज सम एडवांटेजेस, आल्सो इट हैज सम डिसएडवांटेजेस. इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं. इट इज हार्मफुल टू अस एंड कंसीडर एज अ इविल because of the following disadvantages of a friction. Friction slow down the motion को slow कर देता है. Friction produce heat which may damage the machines. Friction wear out the rubbing surface. You must have seen worn out step of the footbridge at railway station. It also damages the sole of a shoe and surface of a tire. The tires of a vehicle wear out gradually due to the friction. Friction wear away the sole of a shoe. Hence, it is clear that friction has some advantages, yet it is also disadvantages in many cases. That's why we can say that friction are necessary evil. It is clear that sometime हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है और कुछ समय हमें फ्रिक्शन को कम भी करना पड़ता है. जैसे हमें जरूरत होती है हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं. Let us see how we may increase or decrease the friction. First is reducing friction. What do you do before playing carom? कैरम खेलने से पहले आप क्या करते हो? और when the door, जब आपका दरवाजा जो है वो क्रीकिंग जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है जब आप उसे खोलते हो या बंद करते हो, तब क्या होता है? जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तब हम कुछ जो पाउडर है उसको बोर्ड पर छिड़क देते हैं सो दैट द स्ट्राइकर मूव स्मूथली. और दरवाजे के जो जॉइंट्स हैं उन पर हम तेल डाल देते हैं जिससे वो
स्मूथ हो जाते हैं। Therefore, to reduce the friction, we must make the contact surface smooth or reduce the area of the contact between them. The flowing way can be used to minimize the friction by lubrication. Lubrication के थ्रू भी हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अप्लाइंग लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कौन से है? लाइक ऑयल, ग्रीस टू rubbing surface by polishing rough surfaces smooth by polishing, due to which friction get reduced. By using a wheel to move object, by using valve wear between the moving part of a machine, thus converting the sliding friction into the. Next is increasing friction. What do we do if we have water or wet ground in front of our gate? क्या करेंगे हम? We put some sand or stone to increase the friction. Friction can be increased by increasing the roughness of the surface in contact or increase the area of a contraction. The flowing way can be used to increase the friction. Shoes are provided with a spike that provide the grip for player and athletes. Second one is grooves are made in the sole of a shoe. It increase the friction. Treads are made in a tires of a vehicle, जो आपने देखे होंगे, वो भी क्या करते हैं? प्रोवाइड ग्रिप. जिम्नास्टिक अप्लाई सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन और फॉर द बेटर ग्रिप. ग्रिप अच्छा करने के लिए वो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन. पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लूइड क्या होता है. जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाई जाती है, जैसे आप सबको पता है. कौन कौन सी 3 स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. जो सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, तो उनमें जो फ्लोइंग क्वालिटी है वो नहीं होगी. जो लिक्विड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल थोड़े दूर होते हैं, लेकिन उनमें फिर भी मूव करने के लिए स्पेस होता है. लेकिन जो गैसेस होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और वो फ्री घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ. इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस और लिक्विड हैं वो क्या है? फ्लूइड है, फ्लूइड्स है. क्यों फ्लूइड्स है? फ्लूइड्स क्या होते हैं? A substance that able to flow easily is called fluids. उन्हें हम fluids कहते हैं. Liquid and gases are fluids. Water and air are most common fluids. There is friction whenever an object move through fluid. It is called a fluid friction. जब फ्लूइड के बीच में होता है तब इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by a fluid on object is called a drag. ये स्पेशल टर्म है ड्रैग. जो फ्लूइड ड्रैग है डिपेंड करता है या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन नंबर 1 speed of object with respect to fluid, या फिर shape of object और nature of object पे डिपेंड करते हैं. shape of object with respect to fluid कैसे डिपेंड करते हैं? more is the speed of object, more is the friction. जैसे कोई तैराक है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो क्या करता है? पानी में स्विम करने के लिए ट्राई करता है,
वो जितनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा उतनी ज़्यादा उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उसे लगानी पड़ेगी। मोर इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मोर इज द फ्रिक्शन। एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे किस तरह से डिपेंड करता है? एरिया ऑफ अट्रैक्शन जितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन भी अगर कम होगा तो उतना ही कम लगेगा। मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मोर इज द फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बोट इज ऑलवेज इन शेप स्ट्रीमलाइन, फिश भी ऐसी ही होती है। एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम कर देती है, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अ फ्लूइड, मोर द पार्टिकल्स आर क्लोज इज डेंसिटी, हेंस more is the friction offered. It is obviously that when object move through a fluid, they have overcome friction acting on them. In this process क्या होता है, इसमें एनर्जी जो है वो लूज होती है और रिड्यूस ऑब्जेक्ट आर मेड विद इन अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है? टेपर at both the ends and wider at the middle. This shape help them to conserve energy while overcoming friction. इसीलिए एरोप्लेन, कार्स और शिप एक्सेट्रा जो है उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। नेचर ने बर्ड्स और फिश को भी स्ट्रीमलाइन बॉडी दी हुई है जो कि हमेशा पानी में रहते हैं, वे उनको मूव करवाने में हेल्प करती है। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।